Some men don't deserve their wives. कुछ पुरुष अपनी पत्नियों के लायक नहीं होते. Abigail was probably the best woman at that time, whom Nabal could afford, and he got even more than what he bargained for after the marriage was arranged with her. Abigail शायद सबसे अच्छी महिला थी उस समय की जिससे नाबाल शादी कर सकता था, और सारी व्यवस्था करने के बाद भी तब भी उससे और अधिक उसको मिला जितना उसने सोचा भी नहीं होगा. She was beautiful, she was intelligent, but Nabal took her for granted. वो सुंदर थी, समझदार थी, बुद्धिमान थी, लेकिन नाबाल ने उसकी कद्र नहीं करी. Abigail is one of the lesser known unsung heroes of the Bible. Abigail जो है उसको कम जाना जाता है, कम प्रचार होता है, लेकिन वो भी एक बाइबल की अच्छी नायिका है. Today we want to look at the story of Abigail, take some lessons from this godly woman. हम आज इस महिला के जीवन पे थोड़ा सा ध्यान करना चाहेंगे और इस खुदा परस्त स्त्री के बारे में थोड़ा सा हम आज सीखना चाहेंगे. Brief background of Abigail. She is an Israeli woman. ये इज़राइल की स्त्री है, and she most probably came from a rich family. और ये जो है जैसा कि हम इस अध्याय 25 में देखते हैं, ये ऐसा प्रतीत होता है कि ये एक अमीर परिवार से थी, and she was married to a rich man. और एक अमीर धनी व्यक्ति के साथ, नबाल के साथ इसकी शादी भी हुई थी. But this man Nabal is a scoundrel. ये जो व्यक्ति नबाल है, ये धूर्त और मतलबी व्यक्ति है. But Abigail was intelligent and beautiful. Abigail जो थी वो बुद्धिमान थी और सुंदर स्त्री थी. And when over here the Bible says that she had a beautiful appearance, जब बाइबल यहाँ पे कहती है कि वो सुंदर स्त्री थी, so this Hebrew phrase of describing beauty is used only for two other women in the Bible. केवल दो और स्त्रियों के लिए कहा गया है कि उस प्रकार सुंदर थी, and one is Rachel and the other is Esther and the third one is Abigail. रेचल के लिए, एस्तर के लिए और फिर तीसरे एबिगेल के लिए ये भाव का प्रयोग हुआ है कि वो सुंदर थी. Now it so happened that in the past David and his men had protected Nabal's property, his sheep, his property were protected as we read. हुआ था अतीत में कि दाऊद ने अपने आदमियों के साथ नाबाल की जो संपत्ति थी, उसके जानवर थे, भेड़ बकरी थी, उसकी रक्षा करी थी. फ्रॉम द फिलिस्तीन अटैक्स, फिलिस्तीनियों के हमलों से उसने रक्षा करी थी. एंड नाउ डेविड इज नियर बाय दिस प्लेस, ही इज स्टिल ऑन द रन. अभी भी वो सॉल से भाग रहा है, सॉल उसके पीछे पड़ा हुआ है जान लेने के लिए. सॉल इज स्टिल ट्राइंग टू टेक हिज लाइफ, बट नाउ डेविड इज इन सम नीड. दाऊद थोड़ी आवश्यकता में है. ही हैज 400 men. Obviously there's need of food, there's need of other resources, and he sends a polite request to Nabal for help. That was early in the chapter, which was not read, but if you have a chapter, you can just quickly see, you'll find it. दाऊद ने मदद मांगी, अपने लोगों को भेजा कि हमें मदद चाहिए, and very politely the men went to ask for help. बहुत शालीनता से वो लोग गए, दीनता से नाबाल से मदद मांगने. But Nabal gave a very wicked response to those men. नाबाल ने बहुत ही बुरा जवाब उनको दिया. We can see that from verse 4 to verse 11. From 4 to 11, we don't need to read that, but you can see how wickedly Nabal answered. Nabal says, who is this, verse 10, who is this David? Who is the son of Jesse? Many servants are breaking away from their masters these days. Why should I take my bread and water and the meat I've slaughtered for my shearers and give it to men coming from who knows where? क्यों मैं अपनी संपत्ति, क्यों मैं अपना खाना पीना इसको दूं? कौन है ये दाऊद? The one who protected him, his household, his sheep. He's saying, who is he? कौन है ये? I'm not going to help you. Tell your leader David, I'm not going to help you. मैं आपकी मदद नहीं कर सकता. Very rudely he spoke and sent those men away. So they went and reported to David, and now David has every reason to be really angry and upset. अब दाऊद को जब उसके आदमी ने आके बताया कि उसने तो मना कर दिया,
आपकी मदद करने से। डेविड के पास पूरा कारण था उसकी नाराजगी का, एंड वी सी दैट ही हैड प्लेज्ड दैट ही विल गो बैक द नेक्स्ट डे एंड नॉट वन मेल फिगर विल बी अलाइव इन दैट हाउसहोल्ड। उसने ये प्रतिज्ञा ले ली थी कि एक भी पुरुष उसके घराने का बचेगा नहीं उसके क्रोध से। 14 onwards was read here. 14 के आगे यहाँ पे पढ़ा गया था। And so the three characters we see in this chapter, that is Nabal, Abigail and David, तीन पात्रों को हम देखते हैं, नाबाल को देखते हैं, एबिगेल को देखते हैं और दाऊद को देखते हैं। But we shall be looking mostly at Abigail. हम ज्यादा ध्यान जो हमारा वो एबिगेल के ऊपर रहेगा। A few things we learn from Abigail, her life and what she did. कुछ बातें जो हम सीख सकते हैं एबिगेल से, उसके जीवन से और जो उसने किया। We see over here that Abigail is an epitome of loyalty and care. हम देखते हैं कि यहाँ पे एबिगेल जो है वो वफादारी और देखभाल करने का प्रतीक है। एक वफादार स्त्री, वफादार पत्नी को हम एबिगेल में देख सकते हैं। It is quite unlikely that Abigail was a good and caring husband. Very unlikely. ऐसा बिल्कुल भी पढ़ के लगता नहीं है कि नबाल जो है वो एक अच्छा पति था या वो ध्यान रखने वाला पति था। He used to get drunk. वो शराब पी के धुत हो जाता था। Men who get drunk and high are usually bad husbands. जो लोग पुरुष पति जो शराब के नशे में धुत हो जाते हैं वो अक्सर बुरे ही पति होते हैं। They get abusive and violent. वो पत्नियों को मारने पीटने वाले भी बन जाते हैं। Yet we see that Abigail over here wants to save the life of her husband. हम देखते हैं कि एबिगेल के मन में इतनी श्रद्धा है अपने पति के लिए कि वो अपने पति की जान बचाना चाहती है और जो घर के लोग हैं उनकी भी जान बचाना चाहती है। She does not see this as an opportunity for God's justice and vengeance. वो उसको ऐसा मौका नहीं देख रही है कि अब यह यही मौका है कि अब परमेश्वर का न्याय जो है इस घर पे आएगा और मैं मुक्त हो जाऊंगी, I'll be free. She doesn't see it like that. वो उसको ऐसा नहीं देखती है। She is filled with care and concern for her husband, and we also see that she is concerned for David and his men. वो अपने पति को भी बचाना चाहती है और साथ में हम देखते हैं कि उसके मन में ये जागरूकता आई कि अरे वहां पर जंगल में ये भूखे प्यासे दाऊद और उसके आदमी भी हैं, इन्होंने मदद मांगी और कुछ करना चाहिए। Something needs to be done. And let's look at verse 18 and 19 of chapter 25. What did she do? Abigail lost no time. She took 200 loaves of bread, 2 skins of wine, 5 dressed sheep, 5 seahs of roasted grain, 100 cakes of raisins, and 200 cakes of pressed figs, and loaded them on donkeys. So I was looking up at Google, like what do these nice dishes look like? मैं Google में देख रहा था कि ये, because I've never, some things even I don't like, pressed figs and roasted grain. And lovely pictures. And I was actually detracted from my sermon for some time. I was looking at those. But when I came to dressed sheep, all the images were there of sheep in nice clothes. All the images, sheep wearing clothes. So I dropped the whole idea. I thought of like show a picture of that food, but then I dropped the whole idea. But what I understood was these were very tasty dishes, as I understand, and a lot of it. बहुत सारा खाना था ये। मैंने जब नेट पे देखा तो बहुत अच्छा पिक्चर्स आई इन खानों की। और जब मैं भेड़, यहाँ ड्रेस शीप लिखा हुआ है, ड्रेस शीप के लिए हिंदी में क्या लिखा हुआ है? ड्रेस शीप इंग्लिश में है पका हुआ मांस। English we say dress sheep. So all this she did, and it says that she lost no time. She did it very fast. बहुत जल्दी उसने इन सब चीजों को तैयार किया। She knew that David and his men needed food. उसको मालूम था कि दाऊद और उसके आदमियों को खाने की आवश्यकता है। They are hungry. They must have been tired and hungry. वो भूखे होंगे, थके हुए होंगे, जंगल में हैं, कुछ नहीं है वहां पे, उन्हें खाने की आवश्यकता है। And she prepares a feast for these men and real fast. I'll say in record time.
बहुत कम समय में उसने इतनी बड़ी दावत का इंतजाम कर दिया दाऊद और उनके लोगों के लिए. एंड नो दिस इज अ ब्यूटीफुल वर्च्यू व्हिच एक्चुअली गॉड हैज बेस्टोड अपॉन women. ये एक बहुत सुंदर गुण है, प्रतिभा है जो परमेश्वर ने महिलाओं को दी है. दे कैन टेक केयर ऑफ यू, रियली गुड केयर ऑफ यू, विद अ लॉट ऑफ वार्मथ इन देयर हार्ट्स. महिलाएं जो हैं वो आपका बहुत अच्छा ख्याल रख सकती हैं और बहुत दिल से आपका ख्याल रख सकती हैं. रिमेंबर द सिस्टर मैरी एंड मार्था. मार्था और मरियम का आपको ध्यान है. मार्था wanted to make a very nice meal for Jesus and the disciples, but she was stuck alone in the kitchen. वो बेचारी किचन में थी. मैरी was listening to Jesus और मार्था जो थी वो सब पकाने में लगी हुई थी. And she says, Jesus, why don't you tell Martha and come and help me? उसने कहा, why don't you tell Mary and come and help me? कि तुम मैरी से कहिए कि आगे मेरी मदद करे, इतना सब कुछ पकाना है. She wanted Mary to help her so that the meal could be prepared properly. वो चाहती थी कि खाना अच्छे से बन जाए, समय पर बन जाए, तो आके मरियम मेरी भी मदद कर दे. And so this is one gift that the Lord has given to women, of caring, of cooking, no, of hospitality, and which we see so in such a wonderful manner in Abigail. Abigail में हम देखते हैं कि ये जो गुण परमेश्वर ने दिया है दिल से तैयारी करने का और ध्यान रखने का, इस चीज को हम Abigail के जीवन में सबसे पहले देखते हैं. Secondly, we see that she is a brave woman. वो बहुत ही बहादुर स्त्री है, जाबाज स्त्री है. In those barbaric times, a woman wouldn't be out in such places. ऐसे जो समय था लड़ाई झगड़े का क्रूर, well, nothing much has changed actually. If you see the war-torn zones, still it's the same more or less. आज भी समय ऐसे ही है, जहां जहां पे युद्ध है वहां भी ऐसे ही मिलेगा आपको. But at that time, to go out like this, इस तरह से जंगल में जाना, रेगिस्तान में जाना और ऐसे दस्ते के पास जाना जो बहुत गुस्से में है, a bunch of men who are very angry, to go there, was something very brave. बहुत उसने दिलेरी का काम किया. Neither she belongs to a family of warriors. वो किसी योद्धा परिवार से नहीं है. Neither she is a warrior herself, but she decides to go. उसने निर्णय किया कि मैं इन इतने आदमियों के पास ये सब लेके जाऊंगी. And it was sheer bravery to go out to meet these angry outlaws. ये लोग जिनको जो लोग सॉल से दूर भाग, सॉल जिनके पीछे पड़ा हुआ था, और ये लोग जो बहुत क्रोधित थे, इनके बीच में जाना बहुत ही ज्यादा बहादुरी का काम था. She mustered the courage to speak and negotiate. उसके अंदर इतना ज्यादा भरोसा आया अपने आप पे कि वो जाके इन लोगों से बातचीत करे, नेगोशिएट करे, तर्क वितर्क करे. She might have rehearsed on the way what she would say, how she would address David. I'm just thinking, हो सकता है रास्ते में सोच रही होगी कि मैं दाऊद से क्या बोलूंगी, कैसे उसको संबोधित करूंगी. How would I plead with him? कैसे मैं अपनी बात को, दलील को उसके सामने रखूंगी. In the corner of her mind, she even might have considered the possibility of getting killed without a hearing. शायद उसके दिमाग में यह भी विचार आया होगा कि वहां पहुंचते पहुंचते मेरी बात कहने से पहले कहीं मुझे जान से ना मार दिया जाए. All of that must have been going in her mind. उसके मन में क्या पता है सारी बातें चल रही हों. You see, we always associate or mostly associate bravery with men. अक्सर हम लोग बहादुरी को पुरुष के साथ जोड़ के रखते हैं. Women are often depicted as shy and fearful. महिलाओं को दिखाया जाता है कि वो शर्मीली हैं, आगे नहीं आती हैं, डर जाती हैं. That's not true for all. ये सच नहीं है. Now, you don't have to be a झांसी की रानी for that reason. लक्ष्मीबाई, अब जरूरत ये नहीं है कि हर स्त्री जो है वो लक्ष्मीबाई झांसी की रानी बन जाए. But like Abigail, every woman has a lot of courage, especially for a family. And there are times when we have seen women who are quiet, but when a need came, that lady stood up, that woman stood up. कई बार देखा गया है ऐसी स्त्री जो वैसे तो शांत रहती हैं, नहीं बात करते, लेकिन जब कभी कोई आवश्यकता पड़ गई तो फिर उन्होंने बहुत बहुत हिम्मत और ताकत दिखाई. And we see that in Abigail, that although she is in such a setup
एंड शी इज नॉट यूज्ड टू फॉल दीज थिंग्स. वो इन सब बातों की आदी नहीं है, लेकिन ऐसे समय पे अपने पति को बचाने के लिए, घराने को बचाने के लिए उसने बहुत हिम्मत जुटाई. Thirdly, we see Abigail as someone who's full of godly wisdom. Godly wisdom. कि परमेश्वर के द्वारा जो बुद्धिमानी मिलती है, ये हम एबिगेल के अंदर देखते हैं. एंड देयर इज अ क्लियर डिफरेंस बिटवीन वर्ल्डली विजडम एंड गॉडली विजडम. अगर आप देखें ध्यान से तो जो ज्ञान संसार देता है और जो बुद्धिमानी परमेश्वर की ओर से आती है उसमें बहुत अंतर है. वर्ल्डली विजडम इज पॉपुलर. जो संसार की ज्ञान है वो बड़ा प्रसिद्ध है, सब लोग उसको बहुत पसंद करते हैं. गॉडली विजडम इज नॉट सो पॉपुलर. परमेश्वर का जो ज्ञान है, परमेश्वर की जो बातें हैं वो इतनी प्रसिद्ध नहीं है. एंड टू स्पीक विद गॉडली विजडम नीड्स अ लॉट ऑफ करेज. परमेश्वर की बुद्धिमानी, परमेश्वर की बातें लोगों को बताना, परमेश्वर की लहजे में बात करना, परमेश्वर के विचारों को रखने में बहुत यहाँ पे हिम्मत चाहिए. एंड गॉडली विजडम ऑल्सो डज नॉट कम एट द स्पर ऑफ द मोमेंट. परमेश्वर की जो बुद्धिमानी है वो अचानक से एकाएक आपको नहीं मिलेगी. ओनली अ पर्सन हु इज डीपली रूटेड इन द वर्ड ऑफ गॉड and is in communion with the Lord is able to say and do what Abigail did. एकदम से कुछ नहीं होगा कि एकदम से आवश्यकता पड़ी और आपको, the Lord can do it, I'm not saying the Lord can't, लेकिन परमेश्वर का जो बुद्धिमानी है वो कैसे आती है? जब कोई व्यक्ति परमेश्वर के वचन में रहता है, परमेश्वर के साथ संबंध में रहता है, तब ऐसे बुद्धिमानी आती. And so I have no doubt in understanding and believing that definitely Abigail was a God-fearing woman, and we will see shortly what else she said. जो भी बातें उसने दाऊद के सामने कही, all this couldn't have come from her own grammar and her own language skills. ये सारी बातें जो उसने कही दाऊद के सामने, ये बिल्कुल भी उसकी अपनी सोच समझ से नहीं आ सकती थी. This shows godly wisdom and it shows that she was in tune with the Lord. ये दिखाती है कि वो परमेश्वर के साथ संगति में थी और परमेश्वर के वचन को जानती थी. Verse 23 onwards, and I would like to read it, a little bit protracted, but like to read it. थोड़ा सा लंबा है, लेकिन मैं पढ़ना चाहूंगा. When Abigail saw David, she quickly got off her donkey and bowed down before David with her face to the ground. She fell at his feet and said, "My Lord, let the blame be on me alone. Please let your servant speak to you. Hear what your servant has to say. May my Lord pay no attention to the wicked man Nabal. He is just like his name, he is a fool, and folly goes with him. But as for me, your servant, I did not see the men my master had sent. Now, since the Lord has kept you, my master, from bloodshed and from avenging yourself with your own hands, as surely as the Lord lives and as you live, may your enemies and all who intend to harm my master be like Nabal. And let this gift which your servant has brought to my master be given to the men who follow you. Please forgive your servant's offense, for the Lord will certainly make a lasting dynasty for my master, because he fights the Lord's battles. Let no wrongdoing be found in you as long as you live. Even though someone is pursuing you to take your life, the life of my master will be bound securely in the bundle of living by the Lord your God. But the lives of your enemies he will hurl away as from the pocket of a sling. When the Lord has done for my master every good thing he promised concerning him, he has appointed him the leader over Israel. My master will not have on his conscience the staggering burden of needless bloodshed or having avenged himself. And when the Lord has brought my master success, remember your servant." Even Chat GPT cannot produce such a marvelous plea. AI का जो टूल है Chat GPT, वहां पे आप कुछ भी डाल दीजिए, बहुत अच्छा लिख के आ जाता है. वो भी ऐसा, इतनी प्यारी. Such godly wisdom cannot be produced by the computer, by artificial intelligence. She knew that David is king in waiting. उसको मालूम था कि दाऊद जो है वो राजा घोषित है.
अभिषिक्त है, बस उसका कुछ समय में राजा बनना बाकी है. शी न्यू दैट. शी ऑल्सो न्यू हाउ टू एड्रेस द किंग. यह भी उसको मालूम था कि एक राजा से कैसे बात करी जाती है. शी वॉज वेरी पोलाइट. बहुत ही शालीनता से, दीनता से उसने अपनी बात को रखा. शी यूज्ड प्रोफेटिक लैंग्वेज. लेट्स नॉट मिस दैट. शी यूज्ड prophetic language as God was enabling her to plead with David. परमेश्वर उसकी सहायता कर रहा था, परमेश्वर उसके साथ था, और एक नबी की तरह वो भविष्यवाणी कर रही थी दाऊद के लिए. And by her godly contemplation and defense, she diffused the situation. इस प्रकार से उसने परमेश्वर में हो करके इतनी बुद्धिमानी का सबूत दिया, और एक बहुत बड़ा जो दुर्घटना घट सकती थी उसने उसको रोक दिया. गॉड वॉज ग्लोरिफाइड. परमेश्वर की स्तुति हुई. डेविड गॉट गुड एडवाइस एंड प्रोफेटिक गाइडेंस. दाऊद को एक बहुत अच्छी सलाह मिली, और एक जैसे एक नबी आगे सलाह देता है, ऐसी सलाह उसको एबिगेल से मिली. एंड ही नीडेड इट. उसको आवश्यकता थी. He was in the wilderness. He was alone with his men. He was tired and hungry. He was angry and upset. वो भाग रहा था, वो जंगल में छिपा हुआ था, उसकी जान के पीछे पड़ा हुआ था सॉल. वो भूखा था, उसके साथ जो उसके सारे जो आदमी थे लड़ाई वाले, वो सब भूखे थे. अभी अभी नाबाल ने उसके साथ इतनी बदतमीजी करी, वो बहुत गुस्से में था. He needed to hear these polite, kind, prophetic words. आवश्यकता थी उसको कि इतने अच्छे सुंदर शब्द परमेश्वर की ओर से इस सुंदर वाणी में कोमल भाव से वो सुने, और उसने सुना. And Nabal's life and his men's life are also spared. नाबाल का जीवन भी उस वक्त बच गया, उस वक्त तो बच ही गया, और उसके जो घराने के सब पुरुषों का जीवन भी उस दिन बच गया. और दाऊद भी जो एक अनावश्यक युद्ध में पड़ जाता, उससे दाऊद भी बच गया. डेविड ऑल्सो गॉट स्पेयर्ड फ्रॉम एन अननेसेसरी वॉर. डेविड ऑल्सो वॉज स्पेयर्ड फ्रॉम दैट. एंड सो वी अंडरस्टैंड, सो इट इज सो नेसेसरी टू ऑलवेज सीक गॉडली विजडम. दैट्स व्हाट एबिगेल डिड. परमेश्वर की बुद्धिमत्ता, बुद्धिमानी को प्राप्त करना बहुत आवश्यक है. Godly wisdom may come from godly literature, it may come from godly books, it may come from godly people, but most of all it comes from the word of God. परमेश्वर की बुद्धिमानी जो है वो परमेश्वर के जो किताबें हैं, साहित्य है, उनसे आ सकती है, संगीत से आ सकती है, परमेश्वर के लोगों के बीच में संगति करने से आ सकती है, लेकिन सबसे ज्यादा परमेश्वर के वचन से हमें परमेश्वर की बुद्धिमानी मिलती है. I am sure that Abigail was in touch with the oral traditions which they had regarding their God Yahweh. अवश्य ही एबिगेल को परमेश्वर याहवे के बारे में मालूम था, जैसे उस वक्त मुंह जबानी से वचन का प्रचार होता था. And godly wisdom will not puff you up with pride. जो परमेश्वर का जो बुद्धिमानी है वो आपको घमंड से भर नहीं देगी, घमंड से हवा नहीं भरेगी, but it makes you humble. That's what we see in Abigail. She was wise, she was intelligent, she was beautiful, she was rich. She could have been very proud, but she was not. Very humble. वो घमंड कर सकती थी अपनी सुंदरता पे, अपनी बुद्धिमानी पे, अपने धन दौलत पर घमंड कर सकती थी, उसने नहीं किया, लेकिन बहुत दीनता से वो गई. परमेश्वर की जो बुद्धि थी उसने उसको दीन किया. And this godly wisdom, same godly wisdom, also humbles us, makes us sensitive to the people, and makes us triumph in most difficult circumstances. परमेश्वर की जो बुद्धिमानी है, ज्ञान है, वो उन कठिन परिस्थितियों में, ऐसी परिस्थितियों में जो हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, उन परिस्थितियों में परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की बुद्धिमानी हमको विजय प्राप्त कराती है. And finally, fourth and the last thing that we learn from this story of Abigail
that in the midst of your struggles and troubles, God can prepare you for something much bigger than what you could have ever imagined. आपकी परेशानियों के बीच में, आपके संघर्षों के बीच में, उसी के बीच में, उसी के मध्य में परमेश्वर आपको तैयार करता है, कर सकता है किसी और बहुत बड़ी योजना के लिए, आपके जीवन के लिए. Now in Abigail's context, I am not suggesting that wives should look for better husbands. Abigail के कहानी में मैं ये नहीं सुझाव दे रहा हूं कि जो पत्नियां हैं वो अच्छे पतियों को ढूंढना शुरू कर दें. But the truth is, and this is the week for International Women's Day, you will come across many videos, many speeches, reels, articles. The truth is, all over the world, still, the plight of women situation is really bad. अभी भी ये सच है. No matter which part of the world, some less, some more. The Middle East, the East in particular. I didn't catch up with the data on West, I'm not sure. But yes, I'm very sure about the East and the Middle East. हमारे क्षेत्र में, मिडिल ईस्ट में, ईस्ट में महिलाओं की स्थिति अभी भी बहुत खराब है. And most women will find themselves trapped in similar circumstances. अधिकतर महिलाएं अपने आप को कुछ ऐसी परिस्थितियों में पाएंगी. Some that they might have made a choice for themselves, a wrong choice, but often the ones where they were put into that situation. कभी कभी अपने गलत चुनाव से शायद वो उस परिस्थिति में आ गई, लेकिन उससे ज्यादा कभी कभी ऐसी परिस्थितियां जहां पे उनको चुनाव करने को नहीं मिला, उनको ऐसी परिस्थिति में ढकेल दिया गया. But the story of Abigail says, whatever family, society, circumstances you are, if you are seeking the Lord, then know that the Lord knows your struggles and the Lord has a bigger plan and purpose for your life. That's what we learn. अगर हम अपने आप को, आप अपने आप को किसी ऐसी परिस्थिति में पाती हैं, मिलती जुलती परिस्थिति में पाती हैं, and you think, well, this is my destiny, यही मेरा भाग्य है. Most women have accepted this is their destiny. बहुत से स्त्रियों ने ये मान लिया कि यही हमारी भाग्य है. And the world makes them believe this is your destiny. संसार उनको कहता है कि यही तुम्हारी भाग्य है. But no, the Lord says no. The Lord, like Abigail, in the midst of the troubles, is preparing and can prepare those who are seeking the Lord. जो परमेश्वर के साथ सुधि रखते हैं, जो परमेश्वर के साथ अपने संबंध को बना के रखते हैं, तो ऐसी भी परिस्थितियों में जहां से कोई रास्ता ना दिखे, जो एक अंधेरी गुफा जैसी लगती है, like a dark tunnel which has no end, the Lord can redeem you out from that circumstance, no matter what circumstance it is. परमेश्वर आपको उस गहरी खाई से, उस अंधेरी गुफा से बचा के ला सकता है अपनी दूसरी योजना में उनको जो परमेश्वर के साथ बन के रहते हैं. एंड दैट इज एप्लीकेबल फॉर बोथ मेन एंड वुमेन. ये स्त्री पुरुष दोनों पे ये बात लागू होती है. बट टुडे इट्स मोर सो फॉर द वुमेन. द स्ट्रगल्स दैट दे फेस इज मच मोर देन व्हाट मेन फेस. जो कठिनाई, संघर्ष महिलाएं जिनसे गुजरती वो बहुत ज्यादा हैं, तुलना करें जो पुरुषों से अगर तुलना करें तो. नो दैट द लॉर्ड नोज योर स्ट्रगल्स एंड इज प्रिपेयरिंग यू फॉर समथिंग ग्रेट. परमेश्वर आपके संघर्षों को जानता है, चाहे वो जो भी संघर्ष हो, और आपको तैयार कर सकता है, कर रहा है अपनी बड़ी योजना के लिए. इट इज सो सैड हाउ मेनी एबिगेल्स टुडे गेट मैरिड टू नाबाल्स. बहुत दुख की बात है आज कितने सारी एबिगेल्स जो हैं वो नाबाल जैसे लोगों के साथ उनके विवाह हो जाता है. गॉड फियरिंग विमेन, टेंडर एंड जेंटल इन द sensibilities, high-minded and noble in their ideals, become tied in marriage unions with men who do not deserve them. दुख की बात है कि कितनी एबिगेल्स जैसी महिलाओं का विवाह नाबाल जैसे घरानों में, पुरुषों में हो जाता है. महिलाएं जो कि परमेश्वर का भय मानती है, महिलाएं जो कि कोमल हैं,
उच्च विचारों की हैं, लेकिन ऐसे बंधन में बन जाती हैं. And only the Lord can redeem these circumstances. The Bible does not teach to leave the husband except for marital unfaithfulness. बाइबल नहीं सिखाती है, वचन बहुत स्पष्ट है. यीशु ने कहा कि केवल अगर आपका साथी जो है वो विवाह में अनफेथफुल है, उसने विश्वासघात किया है, then Jesus made an exception. Personally, I would say, my personal view, if there's domestic violence, then also you should not stay. मैं कहूंगा, व्यक्तिगत रीति से अपनी जिम्मेदारी पे कहूंगा, वचन में नहीं लिखा है कि अगर घरेलू हिंसा से आप पीड़ित हैं, तब भी आपको उस परिस्थिति से बाहर निकलना चाहिए उस समय में. But except for these two reasons, marriage must not be terminated. लेकिन इन दो वजहों के अलावा किसी भी कारण से विवाह को तोड़ना वचन के अनुसार अनुचित है. Abigail was putting up with an abusive husband. Abigail एक ऐसे पति के साथ जी रही थी जो ठीक नहीं था, जालिम स्वभाव का था, बुरा था. But the Lord was strengthening her and preparing her to be a queen. परमेश्वर तैयार कर रहा था उसको रानी बनने के लिए. And that's what we see at the end of this chapter. Nabal is killed, Nabal dies, and David sends a proposal to Abigail. नाबाल की मौत हो जाती है और फिर दाऊद ने इस स्त्री को विवाह का प्रस्ताव भेजा, which he accepted, और उसको ग्रहण किया. And from a woman who was trapped with a scoundrel, एक दुष्ट के साथ, धूर्त व्यक्ति के साथ जो स्त्री फंसी हुई थी, बंधी हुई थी, and she might have stayed like that for the whole life, शायद वो पूरा जीवन वहां व्यतीत कर देती. But God had a bigger plan to make her the queen. परमेश्वर ने उसको रानी बना दिया, and not an ordinary man, the queen of King David, the greatest kings of all times. इतने बड़े राजा की रानी बना दिया. She couldn't have asked for anything more. इससे ज्यादा उस समय में किसी स्त्री को क्या मिल सकता था? But that's only an example. ये केवल उदाहरण है बताने के लिए. The Lord can do anything. परमेश्वर आपके जीवन में कुछ भी कर सकता है. To conclude, a woman who is kind and compassionate, एक महिला, एक स्त्री जो कि दयालु है, कृपालु है. A woman who is full of godly wisdom, एक महिला जो परमेश्वर की बुद्धिमानी से भरी हुई है. Loving and caring to the needs of others, औरों के आवश्यकताओं के प्रति उसका ध्यान है, प्रेम है. Humble and polite, दीन है, शालीनता से बात करती है. Speaks the truth in love, सच बोलती है, प्रेम के साथ सच बोलती है. Who is fearless, जो कि डरती नहीं है. She is her earthly father's joy. That's what the name Abigail means, her father's joy. And every woman can be, must be, should be an Abigail, her father's joy. Not only her earthly father's joy, but also our heavenly father's joy. हर स्त्री अपने पिता के लिए एक आनंद का कारण बनती है, बन सकती है, और अपने स्वर्गीय पिता के लिए भी वो आनंद का कारण बन सकती है. And she is a queen. और इसलिए ऐसी स्त्री जो है वो किसी भी रानी से कम नहीं है. And she is a blessing to many. और कितनों के लिए वो एक बहुत बड़ी आशीष का कारण ये स्त्री है. Let's pray. Father, we thank you that in the treasure house of your word we have such wonderful, beautiful people. आपके इस वचन के खजाने में कितने अच्छे सुंदर लोग हैं. This morning we are touched by how you shaped the life of Abigail and used her for your glory. कैसे आपने एबिगेल को तैयार किया और आपने उसका उपयोग किया in making the history of Israel. इज़राइल के इतिहास में आपने उसका नाम दर्ज किया. Help us, Lord, to learn something this morning. Help us to learn to seek godly wisdom
Help us to learn to be respectful. Help us to learn to be full of love and compassion. प्रभु जी, हमें आज सिखाइए कि हम कैसे बुद्धिमानी से भर सकते हैं जो आपकी ओर से आती है, कैसे हम दया कृपा अपने अंदर ला सकते हैं. And how much we need to seek you to be able to do all that Abigail did. कितना आवश्यकता है कि हम आपको ढूंढे, आपके साथ बने रहें, ताकि जो कुछ एबिगेल ने यहां किया वो सब हम भी करने पाए. Help us, Lord, to not be rash. Help us to be calm and be prophets in our own circumstances. प्रभु जी, हम बहुत ज्यादा जल्दबाजी ना करें, लेकिन एक नबी की नाई अपने समय को पढ़ें, परखें, और हमारे आसपास के लोग जो हैं उनके लिए हम अपने शब्दों के द्वारा, विचारों के द्वारा आशीष का कारण बने. With our words, with our thoughts, may we all be blessing to the people around us. In Jesus' name we pray. Amen.